Good evening, my dear students. I hope you have understood the last two chapter of mathematics, which I forwarded in the respective school group. As today we're going to start the ninth chapter, algebraic expression and its identities. The first today we should learn what is algebraic expression. The reason behind of starting this chapter is that linear equation is related to algebraic expression because linear equation is a part of algebra. Algebra, since you have known the topic from last 2 years, it's same with a different set of things being added this year with the new skill set to be occupied by yourself. So we should learn the meaning of algebraic expression. The algebraic expression is a mathematical expression which consists of three things. Three things. One is constant, second is variables, third is operation. Constant means fixed, which never change. Variable means not fixed, which keeps on changing. Operations are plus, minus, into, divide. These are the three elements of algebraic expression. So constant means which never changes. Example, numbers. वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जो बार बार बदलता रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स. एग्जाम्पल है अल्फ़ाबेट्स. और ऑपरेशन तो आपको पता है 4 टाइप का है. नंबर्स में आपका क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 अनलिमिटेड और इन्फिनिट. अल्फ़ाबेट में क्या होगा? ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड. दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ algebraic expression. Then after learning the constant variable operation, next topic to be discussed is terms. What is terms? A terms a part of the expression which is separated either by plus or minus. For example, I take an expression called 3x square minus 2y plus 7. It's an expression. It's called an algebraic expression. Why it's called an algebraic expression? Because the constant 3 minus 2 and 7, variables as x square, x and y. Variables is x and y. Operation being used is minus and plus. These are the 3 element which is present in the above equation. Not equation, expression. We call that to be an algebraic expression. Now what is term? A part of the expression which is being separated by plus or minus. Part of the expression which is separated by plus or minus. आप देख सकते हो एक्सप्रेशन का फर्स्ट दो के बीच में क्या? माइनस. माइनस देख सकते हो आप. उसके लेफ्ट में एक टर्म है, राइट में एक टर्म है. सिमिलरली बाकी दो को अगर मैं कंपेयर करूँगा उसके बीच में क्या? प्लस. तो इधर एक टर्म है, इधर एक टर्म है. तो टोटल टर्म्स इधर कितना है? टोटल टर्म्स इज 3 टर्म्स है. 1 2 3. बिकॉज इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? माइनस. इन दोनों को सेपरेट कर रहा है प्लस. 3 टर्म्स क्या क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2y और 7. तो माइनस क्यों इधर प्लेस किया? क्योंकि नेगेटिव को हमेशा आपको शो करना होता है, पॉजिटिव को कभी भी शो नहीं करते. आप इंटीजर में भी पढ़े हो. क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर टर्म्स वी विल बी रीडिंग अबाउट कोफिशिएंट. And what is coefficient? Coefficient is known as the numerical factor of the term. टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर को बोलते हैं कोफिशिएंट. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर, इट्स ए टर्म. इसमें नंबर क्या लगा है? इसमें नंबर लगा है 3 है उसका कोफिशिएंट. सेकंड टर्म क्या था? -2 है. इसमें नंबर क्या लगा है? -2. 7 का सर इसमें तो कुछ वेरिएबल नहीं लगा है, इसका कोफिशिएंट कैसे होगा? आई कैन राइट 7 एज x⁻0. अब एक्सपोनेंट पावर में पढ़े थे किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है क्या होता है? आंसर 1. तो 7 into 1 विल बी कोफिशिएंट विल बी 7. दिस इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट. नाउ टर्म्स आर ऑफ टाइप्स ऑफ टर्म्स. इट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज लाइक टर्म, सेकंड इज अनलाइक टर्म. लाइक टर्म किससे कहते हैं? जिस किसी टर्म में सेम
वेरिएबल विथ सेम पावर होता है, जिसका वेरिएबल और पावर सेम होता है उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे -9y² कॉमा 7y² कॉमा -y²। इसमें आप देख सकते हो हर जगह वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, इसलिए ये बन गया आपका लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ लाइक टर्म्स। जिस किसी टर्म का वेरिएबल अलग अलग होता है उसको बोलते हैं लाइक अनलाइक टर्म्स। जैसे कि आप देख सकते हो 7x कॉमा -9y² कॉमा 8xy। इसमें क्या कर रहे हैं? इधर x है, इधर y² है और इधर xy है, जो जिसमें वेरिएबल्स अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म्स। सो आफ्टर दिस algebra has been classified into 4 types. One is monomial, second is binomial, third is trinomial and last is polynomial. तो ये एक्चुअली होता क्या है? मोनो मीन्स, एज नेम इंडिकेट्स, मोनो मीन्स सिंगल टर्म। जिस किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल 4x² -8xy तो ये सब क्या है? मोनोमियल, क्योंकि सिंगल टर्म है। बाइनोमियल मीन्स, बाई मीन्स टू टर्म, जिसमें दो टर्म्स होते हैं। जैसे कि मान के चलो आपका 2a + 5b दिया है, 2a + 5b दिया है, तो ये आपका 2a + 5b कितना टर्म है? इधर एक टर्म है, इधर एक टर्म है, दो टर्म मीन्स बाइनोमियल। सिमिलरली ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म, जैसे ऊपर में उदाहरण लिया था 3x² - 2y + 7, तो ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। सिमिलरली पॉलिनोमियल का मतलब है जिस किसी एक्सप्रेशन में एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, जिस किसी एक्सप्रेशन में एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म होते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। 4 वाला टर्म भी आएगा, वो भी होगा आपका पॉलिनोमियल। 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल a + b + c + d ये एक पॉलिनोमियल है। 3xy ये भी एक पॉलिनोमियल है। 7xyz - 10 ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 4 टर्म लगा है, मोर देन 1 हुआ तो पॉलिनोमियल। एक है पॉलिनोमियल, एक से ज़्यादा 2 है तो पॉलिनोमियल। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ algebraic expressions. I hope you have understood the introduction part of algebraic expression very clearly. I will provide you the note in the further after uploading this video of algebraic expression on your respective group. Clear? So kindly go through the introduction part of algebraic expression. Then after I will be uploading the first exercise with proper explanation of the methods today which I have taught in today's live class. I hope you have understood it.